Assalamu alaikum all. We are back with the discussion of subject of organizational behavior. Today we are going to start chapter number 9, that is personality and cultural values. You people already know that we are going through from the book of Colquitt and his fellows. So there is an integrated OB model being developed by the author that is shown over here in this diagram. We started our discussion with the dependent variables. Those are performance and commitment. Then in the second phase, we cover the individual mechanism, that is the chapter of job satisfaction, stress, motivation, trust and justice and ethics, learning and decision making. That was the last chapter we had covered. Today, we are going to start with the individual characteristics. There are two individual characteristics people can see over here. There are three basically mechanism or three levels of independent variables. You can see from top, that is organizational mechanism, then we have group mechanism, and thirdly we have the individual characteristics. These three independent variables collectively are independently influence individual mechanisms. Those are job satisfaction, stress, motivation, trust, learning and decision making. And ultimately those individual mechanisms influence individual level outcomes. So today we are going to start personality and values. Now personality is the term जिससे आप सब लोग familiar हैं. Personality क्या होती है? हम अक्सर कहते हैं that individual is having a very good personality, that individual is having moderate level of personality, or we often say that individual is poor at personality. Now what constructs a personality? What makes your personality? We can say it's basically combination of extrinsic and intrinsic characteristics of an individual, like how one is in looks, how one speaks, how one behaves, how one thinks of other things, how one believes, how one actually values others. Basically it covers many aspects. Those are part of personality. But we can say that personality refers to the structures and propensities inside people that explain their characteristics, patterns of thought, emotion and behaviors. लोग क्या सोचते हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, हाउ दे बिहेव, हाउ दे लुक, एवरीथिंग इज पर्सनैलिटी. देन पर्सनैलिटी हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट पीपल आर लाइक, लोग कैसे हैं, किस तरह के हैं, दैट डिफाइन देयर पर्सन, दैट इज बीइंग डिफाइंड बाय देयर पर्सनैलिटी. तो पर्सनैलिटी क्रिएट्स पीपल्स सोशल रेपुटेशन, the way they are perceived by friends, family, co-workers and supervisors. Like you people might have developed a perception about your teachers, about your friends, about your colleagues, about your college, about your environment. इवन जो कॉलेज के बारे में आपकी रेपुटेशन आपने डेवलप की है, दैट इज पर्सनैलिटी ऑफ कॉलेज. आप एक ब्रांड के बारे में भी डेवलप कर सकते हैं रेपुटेशन, दैट वुड बी ब्रांड पर्सनैलिटी. आप किसी इंडिविजुअल के बारे में कर सकते हैं, दैट इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है वो. तो बेसिकली ये जो हम रेपुटेशन डेवलप करें, दैट इज बेस्ड ऑन सम ट्रेट्स. तो ट्रेट्स आर डिफाइंड एज रिकरिंग रेगुलरिटीज और ट्रेंड्स इन पीपल्स रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट. कि जो रेगुलर बेसिस पे जो आप रिएक्शंस देते हैं, रेगुलर बेसिस पे एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करते हुए लोगों को जो आप बिहेवियर अपना देते हैं, दैट इज योर ट्रेट. तो बेसिकली ट्रेट्स जो हैं एक एडजेक्टिव के तौर पे देखे जाते हैं. जिस तरह हम कहते हैं ना कि स्मार्ट पर्सन, हाइटेड पर्सन, अ पर्सन विद गुड ड्रेसिंग. अब इन ये सारी बेसिकली ट्रेट्स हैं, तो ये एडजेक्टिव्स हैं. इंग्लिश में आप एडजेक्टिव्स के वर्ड को जानते हैं जो किसी चीज की तारीफ या खूबी को बयान करती है. तो adjectives like one could be reasonable, one could be easygoing, one could be polite, one could be reserved, ये सारे के सारे adjectives हैं. अब ये adjectives जो हैं एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी की डिपिक्शन है. अगर आप डिक्शनरीज में जाएं तो देयर आर मोर देन 17,000 एडजेक्टिव्स. इट मीन 17,000 आपकी पर्सनैलिटी की टाइप्स भी बनती हैं. ठीक है, तो अब ये जो चीज़ है ये एक डिस्क्राइब करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है. कि इसका मतलब ये हो कि पर्सनैलिटी को डिफाइन करने वाली चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा है. बट रिमेंबर दैट वो जो डिफाइन करने वाली चीज़ें हैं, दोज फॉल इन वन वे और अदर, सम कैटेगरीज दोज आर मेंशन्ड इन दिस स्लाइड. सो हम कह सकते हैं कि लाइक अगर आप पर्सनैलिटी को डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, डिस्क्राइब योर फर्स्ट रूममेट और यूनिवर्सिटी फ्रेंड. आप आए थे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो हु वाज योर रूममेट जिससे इंटरेक्शन हुआ, एंड हाउ यू परसीव ऑफ दैट इंडिविजुअल. इधर आपकी जो फर्स्ट परसेप्शन थी, जो फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ था उस वक्त जो परसेप्शन बनी थी और जो लेटर ऑन बनी थी, क्या वो सेम थी या चेंज हुई. जब आप डिफाइन कर रहे होंगे अपने फ्रेंड्स को, रूममेट को या फ्रेंड को,
फर्स्ट इंटरेक्शन को भी आप डिफाइन कर रहे होंगे और लेटर ऑन जो सब्सिक्वेंट इंटरेक्शन हैं उनको भी। तो आप बेस्ड ऑन सम ट्रेड्स ही कर रहे होंगे, लाइक वो जॉली पर्सन था, वो स्पोर्टिव पर्सन था, वो खुश अखलाक था, बोलने में बड़ा अच्छा था, ड्रेस बड़ा अच्छा पहना हुआ था, क्या पहना हुआ था उसने, किस कलर का ड्रेस था, क्या बात कर रहा था, ये सारी की सारी जो आप बयान करेंगे दैट वुड बी एडजेक्टिव। तो दोज एडजेक्टिव्स आर बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनैलिटीज। तो अब जो 17,000 प्लस एडजेक्टिव्स हैं, तो 17,000 पर्सनैलिटीज तो नहीं हो सकती, उनको वेरियस कैटेगरीज में डिफाइन किया गया। लाइक बिग फाइव पर्सनैलिटी टेक्सोनॉमी है, एमबीटीआई है, मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, एंड राइजिक मॉडल है हॉलैंड का। इनको हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो ये बिग फाइव पर्सनैलिटी आपके सामने बनी हुई है। बिग फाइव से मुराद है बड़ी पांच, इसमें पांच खूबियां हैं। कनू इसका जो है वो कैचवर्ड बनता है, आपको पीछे कनू बनी भी हुई है। बेसिकली ये शिप है, कनू थोड़ी सी डिफरेंट होती है ऐसे, लेकिन कनू तकरीबन इसी शेप में होती है, जो थोड़ी सी लॉन्ग होती है, उसमें अकेला इंसान जो है उसको चलाता है। तो यू कैन सी ओवर हेयर, C for consciousness, A for agreeableness, N for neuroticism, O for openness and E for extrovertness। अब जो कॉन्शियसनेस है कि आप कितने कॉन्शियस हैं, आप कितने जो है वो कॉन्शियस, वो बंदे होते हैं जो जो फिक्रमंद होते हैं। तो जो फिक्रमंद होता है उसको कोई भी काम देंगे वो टारगेट ओरिएंटेड होगा, टारगेट को काम टाइम पे करेगा। वो अगर वो टारगेट को टाइम पे कर रहा है तो वो डिपेंडेबल भी हुआ ना, आप उसको टारगेट जरूर देना पसंद करेंगे। अगर वो फिक्रमंद रहता है तो वो ऑर्गेनाइज भी होगा, वो चीज़ों को बड़े ऑर्गेनाइज और वेल मैनर तरीके से मैनेज करेगा। रिलायबल होगा क्योंकि वो काम को की टेंशन लेता है, उसकी फिक्र करता है, दैट इज वाई वी कैन रिलाई ऑन दैट इंडिविजुअल। एम्बिशियस होगा, हार्ड वर्किंग होगा और प्रिजर्विंग होगा। अब इसके अपोजिट होता है वो लोग जो केयरलेस होते हैं, स्लॉपी, इनएफिशिएंट, नेग्लिजेंट, लेजी, इररिस्पॉन्सिबल। ये उनकी कॉन्शियसनेस लो होगी। एग्रीएबलनेस नाम से जाहिर हो रहा है जो लोगों से एग्री हो जाते हैं, वो लोग जो दूसरे लोगों की बात को सुन के उनके उनसे एग्री होते हैं। एक्चुअली वो एग्री इसलिए नहीं होते कि उनके पास बात करने को नहीं है, बेसिकली वो दूसरों को वैल्यू करते हैं। जब आप दूसरों को वैल्यू करें, इट मींस यू आर काइंड टुवर्ड्स देम, यू आर कोऑपरेटिव फॉर देम, यू आर सिंपैथेटिक टू देम, हेल्पफुल टू देम, कर्टियस टू देम, वार्म टू देम, कि आप उनकी कदर कर रहे हैं बात की। इसके मुकाबले में जिन लोगों की एग्रीएबलनेस लो होती है वो स्टबर्न होते हैं, एंटागोनिस्टिक होते हैं, कलस होते हैं, सेल्फिश होते हैं। अच्छा, अब जो एग्रीएबल लोग हैं ना, ये लोग जो है इनको लोग पसंद करते हैं, इसलिए लाइक इनको हर बात की कोशिश होगी कि उसका सबॉर्डिनेट हाई एग्रीएबलनेस वाला हो, क्योंकि वो बास की बात को मान जाएगा। हर बंदे की कोशिश होगी उसका जो लाइफ पार्टनर है वो हाई एग्रीएबलनेस वाला हो, लाइक वाइफ की कोशिश होगी कि हस्बैंड जो है वो एग्रीएबलनेस वाला हो, हस्बैंड की कोशिश होगी वाइफ एग्रीएबलनेस वाली हो। तो एग्रीएबल पीपल आर बीइंग लाइक्ड बाय अदर्स, क्योंकि ये उनकी बात से इत्तेफाक करते हैं, उनकी बात को वैल्यू करते हैं, उनके साथ काइंड होते हैं, तो इनको हर बंदा जो है वो अपने साथ रखना पसंद करता है। देन न्यूरोटिसिज्म है, ये इमोशनल स्टेबिलिटी का अपोजिट है बच्चों, कि वो लोग जिनके इमोशन स्टेबल होते हैं उनके कहेंगे लो न्यूरोटिसिज्म होती है, लेकिन जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी लो होती है उनकी न्यूरोटिसिज्म जो है वो हाई होगी। तो ये अपोजिट है इमोशनल स्टेबिलिटी का। तो आप कह लें कि न्यूरोटिसिज्म हाई होना मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी लो है एंड वाइस वर्सा। तो जो न्यूरोटिसिस लोग होंगे क्या होंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी अगर आपकी लो है, यानी आपके इमोशन स्टेबल नहीं है, आप जल्दी घबरा जाएंगे, जल्दी परेशान हो जाएंगे, छोटी सी बात पे घबरा जाएंगे। ठीक है, हो सकता है डिलाइट वाली बात हो तो बहुत ज्यादा उस पर हंसे, तो ये इमोशंस का कंट्रोल ना कर सकने की एबिलिटी है बेसिकली इंसान की। तो ऐसे लोग नर्वस होते हैं, मूडी होते हैं, इमोशनल होते हैं, इनसिक्योर, जेलस, अनस्टेबल, यानी उनके स्टेबल इमोशंस नहीं होते हैं, मूड जल्दी स्विंग्स होते हैं, इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, नर्व्स पे काबू नहीं होता है, वो लोग न्यूरोटिसिस हाई न्यूरोटिसिस होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जिनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वो काम होंगे, स्टडी होंगे, रिलैक्स होंगे, एट ईज होंगे, सिक्योर होंगे, कंटेंटेड होंगे। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी पढ़ा था कि टाइप ए वो लोग होते हैं जो ग्रिगोरियस होते हैं, जल्दी अचीव करना चाहते हैं, कॉम नहीं होते हैं, जल्दी मेहनत करते हैं और जल्दी रिवार्ड उसका लेना चाहते हैं, वेट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ जो वो लोग जो है वो काम नहीं है ना, टाइप बी काम होते हैं। तो टाइप बी जो है वो लोग होंगे जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी हाई होगी, और टाइप ए वो लोग होंगे जिनकी इमोशनल स्टेबिलिटी लो होगी। देन ओपननेस टू एक्सपीरियंस है, यानी आप नई चीजें करने के लिए कितने ओपन है, आप कितने एक्सपीरियंसेस नए लेते हैं। आप काम एक चल रहा है, क्या काम को नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं, कहीं जा रहे हैं तो क्या नए रूट से जाने की कोशिश करते हैं, कोई खाना खाने जाना है तो क्या नए खाना ट्राई करते हैं, क्या कोई काम को नए तरीके से करने की कोशिश करते हैं आप। तो ये जो लोग हैं ये इनकी, अगर आप ऐसा करते हैं तो वी वुड से कि आपकी ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई है। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप रूटीन में जाना पसंद करते हैं, देन योर ओपननेस टू एक्सपीरियंस इज लो।
लाइक ओपननेस टू एक्सपीरियंस वाले लोग जिनकी हाई होती है वो कैसे होते हैं? क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, रिफाइंड होते हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं। एंड उसके मुकाबले में जो ओपननेस जिनके लोग होती है, यूनी ये यूनिक्विजिटिव होते हैं, कन्वेंशनल होते हैं, कन्फर्मिंग होते हैं, सिंपल है, अनआर्टिस्टिक है, ट्रेडिशनल है। अनआर्टिस्टिक है मतलब वो आर्टिस्टिक, आर्टिस्ट का काम ही कुछ नया करने का होता है, तो ये नया नहीं करते। जो तो ओपननेस वाले जो लोग होंगे जिनकी हाई होगी वो आर्टिस्टिक होगी। ओके, आफ्टर दैट वी हैव एक्सट्रोवर्जन। ये आप जरूर फेमिलियर होंगे, वो लोग जो टॉकटिव होते हैं, सोशल होते हैं, असर्टिव होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, वो लोग कहलाते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो ये लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाएंगे, जल्दी दोस्तियां कर लेंगे, जल्दी अपनी बात का बयान करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, लोगों की बात भी सुनेंगे। इंट्रोवर्ट अपोजिट होते हैं, अपने आप में रहने वाले, लोगों से शेयर ना करने वाले, लोगों से डिस्कशन ना करने वाले। ठीक है, तो वो हमारे इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। तो ये एक्सट्रोवर्जन का अपोजिट इंट्रोवर्जन है, हाई ओपननेस का अपोजिट जो है वो लो ओपननेस है, न्यूरोटिसिज्म का अपोजिट जो है वो इमोशनल जो है वो स्टेबिलिटी है, एग्रीएबलनेस का है लो एग्रीएबलनेस, और कंसोशियसनेस का है लो कंसोशियसनेस। अब बेसिकली किस तरह ये डिटरमन होती है कि आप एग्रीएबल हैं या आप ओपननेस टू एक्सपीरियंस हैं या आप जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, तो वो कैसे होता है? देयर आर टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी बच्चों। नंबर वन इज हेरिडिटी, विरासत आपकी, जो जीन्स की शक्ल में आती है, इसे हम नेचर कह सकते हैं। और इन्वायरमेंट है दूसरा, जिसमें आप पलते बढ़ते हैं, वो आपकी नर्चर है। ठीक है, आपकी फितरत है जो बन जाती है। नेचर के बाद जो है आपकी परवरिश जो बन जाती है, वो आपकी नर्चर है। जिस तरह कुरान मजीद की एक आयत का मफहूम है, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करेगा मैं गलती पे हूँ, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये चौथे या पांचवें महीने में हम रूह फूंक देते हैं एक इंसान की, जब वो माँ के पेट में होता है। जब वो रूह फेंकते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, फूंकते हैं तो आप वसल्लम का एक फरमान है कि इंसान जब एक फरिश्ता आता है जो उसकी उम्र और उसका रिस्क लिख के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब रिस्क के अंदर मौलाना रूम को अगर आप लें ना, तो मौलाना रूम तो कहते हैं रिस्क के अंदर जो है दोस्तियां भी आती हैं, रिस्क में तल्लक भी आता है, रिस्क में इनकम भी आती है, रिस्क में फैमिली भी आती है, रिस्क में रिश्ते भी आते हैं। ये सारा रिस्क है। ठीक है, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं, औलाद भी उसमें से एक है। अब ये सारी चीजें जो है और वो कैसी होनी है औलाद, ये सारा अगर रिस्क है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जब वो फरिश्ता आया वो अपने साथ ले आया चीजों को, तो इसका मतलब ये वो इन्वायरमेंट, माँ के पेट से ही आपका इन्वायरमेंट स्टार्ट हो गया। ठीक है, तभी तो वो होता है ना कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना हुआ है, लोग कहते हैं कि उस्ताद ने कुरान पढ़ाया तो कितने पारे उन्होंने सुना दिए, क्योंकि उनकी माँ कुरान पढ़ती रहती थी। तो दिस इज रियलिटी। ठीक है, कि आपकी मदर जो एक्टिविटीज करेगी वो बच्चे के ऊपर इम्पेक्ट आएगा। दैट इज वाई जो ज्यूज इसराइलीज हैं वो दोज आर वेरी गुड एट मैथमेटिक्स। उनकी मदर्स जो हैं वो मैथमेटिक्स करती हैं जब दे दे आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी। अब ये जो चीज़ है ये क्या है बेसिकली? ये वो इन्वायरमेंट है, यहाँ से इन्वायरमेंट स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद बेबी पैदा होता है, माँ की गोद में है, अपनी सराउंडिंग को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। वहाँ से उसकी ब्रॉटअप स्टार्ट हुई है, वहाँ से उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होना स्टार्ट हुई है। मैंने ऊंचा बोलना है, मैंने स्लो बोलना है, मैंने उर्दू बोलनी, मैंने इंग्लिश बोलनी, मैंने किस तरह के वर्ड्स यूज करने हैं, ये सारी पर्सनैलिटी है ना उसकी। मैंने बाबा कहना है या दादा कहना है, या मैंने बाबा अबू कहना है, या मैंने क्या कहना है, वो सारा वो वहां से सीख रही है, उसकी पर्सनैलिटी बन रही है। देन स्कूलिंग है, स्कूलिंग ऐड करती है, फिर फ्रेंड्स ऐड होते हैं, फिर सोसाइटी ऐड करते हैं। तो अब ये जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट है ना, ये चेंज होता रहता है। अब देखिए, स्कूल में आपके मूड्स और बिहेवियर्स और इमोशंस और होंगी, लेकिन जैसे ही आप कॉलेज में आए आपके और हो गए, यूनिवर्सिटी में आए तो आप खुद मजीद बदल गए होंगे। आपके फ्रेंड्स पहले और होंगे, अब आपके फ्रेंड्स और हैं, तो अब आपको आप बदल रहे हो, चेंज हो रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो चीजें हैं ये हमारे पर्सनैलिटी डिटरमिन करती हैं। अच्छा, अब वो जो पांच हमने ट्रेड्स पढ़ी है ना, जिसे हमने कनू का एब्रीविएशन दिया था, कॉन्शियसनेस, एग्रीएबलनेस, न्यूरोटिज्म, ओपननेस और एक्सट्रोवर्जन। अब यहाँ देख सकते हैं कॉन्शियसनेस ब्लू में है। तो कॉन्शियसनेस जो है जब हम कम उम्र में होते हैं, अब जिस तरह हमने अभी बात की है ना कि अगर तो वाकई की इफेक्ट जो है हमारे ऊपर हमारी विरासत का होता है, तो अगर विरासत का इफेक्ट है, जिस तरह विरासत का वाकई अराउंड 50% इम्पैक्ट जो है ना हमारी पर्सनैलिटी पे विरासत का है, तो फिर तो ये होना चाहिए एक बच्चा पैदा हो या बूढ़ा हो जाए, दोनों सूरतों में उसकी सारी एक पर्सनैलिटी जो है वो वैसी की वैसी रहनी चाहिए, उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बदलती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, जिस तरह आप देखें कंसॉन्शियसनेस इंसान की जब उम्र 10 से 18 साल होती है तो वो लोएस्ट लेवल पे है। जैसे ही वो 18 से 22 गया बड़ी, 22 से 30 से 40 पे गया तो और बड़ी। ठीक है, कॉन्शियसनेस मुसलसल उसकी बढ़ रही है, यानी वो अरेंज्ड, डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड, जो है वो ट्रस्ट वर्दी, वो होता जा रहा है, मजीद बढ़ता जा रहा है।
अब ये चीज क्या हो रही है, बेसिकली उसकी बढ़ रही है कॉन्शियसनेस उम्र के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज आप देखें, एग्रीएबलनेस है। एग्रीएबलनेस भी उसकी पहले कम होती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वो बढ़ती जाती है। तो इट मीन्स के एग्रीएबलनेस में भी तब्दीली आती है। तो ये जेनेटिक चेंज तो ना हुई, जीन्स तो वैसे के वैसे रहते हैं, ये कौन सी चेंज आ रही है, एनवायरनमेंट की वजह से। आप उसके मुकाबले में न्यूरोटिसिज्म देखें तो स्टार्ट में आपकी ज्यादा होती है, लेटर ऑन वो कम होती जाती है। आप बुजुर्गों को कभी देखें, बुजुर्ग लेस इमोशनली स्टेबल होते हैं। ठीक है, वो एक कुरान मजीद की आयत का मफहूम है कि हम तुम्हें बचपन से जवानी और जवानी से बचपन की तरफ लौटाते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज क्या है, ये वही है ना कि आप बचपन से फिर जवानी और जवानी से फिर बचपन, वही इमोशन हो जाते हैं आपके। तो न्यूरोटिसिज्म यानी इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी जो है, जो इमोशंस हैं वो आपके कम होते जाएंगे, स्टेबल होते जाएंगे। देखिए ना, न्यूरोटिसिज्म यही है ना कि इमोशन जब स्टेबल नहीं होते तो स्टार्ट में जो है आपकी जीरो के करीब है। आपकी हाई न्यूरोटिसिज्म यानी इमोशन स्टेबल नहीं है। जैसी उम्र बढ़ती जा रही है आपके इमोशन जो है वो स्टेबल होते जा रहे हैं। बुजुर्गों को आप देखें ना, तो वो कम उन्हें गुस्सा आता है, लेकिन जब आता है तो ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, सियाने होते हैं, समझदार होते हैं, अक्लमंद होते हैं, शऊर वाले होते हैं। और अकल और शऊर का आपको पता है डायरेक्ट लिंक है हमारे जो है वो इमोशंस के साथ। देन ओपननेस है हमारी। हमारा ओपननेस तो एक्सपीरियंस देखिए स्टार्ट में कम होता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और फिर कम होना शुरू हो जाता है। यानी हम एंड पे आके फिर हमारी ओपननेस टू एक्सपीरियंस भी कम हो जाती है। और एक्सट्रोवर्जन जो है वो तकरीबन स्टेबल चलता है और थोड़ा सा कम हो जाता है। बचपन में ज्यादा होता है, जवानी में उतना ही चलता है और एंड तक उतना ही चलता है तकरीबन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्वायरमेंट जो है वो सारी चीजें डिटरमिन नहीं करता। कुछ चीजें 100% या सिग्निफिकेंटली जेनेटिक डिटरमिन करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सट्रोवर्जन नहीं बदल रहा तो एक्सट्रोवर्जन के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट किसका है, इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट नहीं हो रहा तो फिर जीन्स का इम्पैक्ट है। इसके मुकाबले में जो चीजें बदल रही हैं, आपकी चार चीजें वो हैं जो बहुत ज्यादा चेंज हो रही हैं, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं। उसका मतलब उनके ऊपर जो इम्पैक्ट आ रहा है वो इन्वायरमेंट का। अब ये मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। कॉन्सॉन्शियसनेस ये होता है ना कि वो लोग जो डिपेंडेबल होते हैं, जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है, जिनको टास्क दिए जा सकते हैं, वो टास्क टाइम पे और करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें इन लोगों में क्या होती है, अकम्पलिशमेंट स्ट्राइविंग होती है, वो कोशिश करते हैं अकम्पलिशमेंट करने की। अब वो इट रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रांग डिजायर टू अकम्प्लिश टास्क रिलेटेड गोल्स एज अ मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग पर्सनैलिटी। ये लोग अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो टास्क रिलेटेड गोल जो है वो करते हैं। देन एग्रीएबलनेस है। ये जो लोग होते हैं ना, इनकी जो एग्रीएबलनेस वाले लोग हैं, ये एग्रीएबलनेस इनमें ज्यादा होती है। मैंने बताया था कि ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं कि ये सबऑर्डिनेट के तौर पे भी पसंद किए जाते हैं, वो लाइफ पार्टनर के तौर पे भी पसंद किए जाते हैं, फ्रेंड्स के तौर पे भी पसंद किए जाते हैं। तो ये लोग जो है कम्युनियन स्ट्राइविंग करते हैं, यानी इकट्ठी कोशिश करते हैं, विच रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रांग डिजायर टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस इन पर्सनल रिलेशनशिप एज अ मीन ऑफ एक्सप्रेसिंग पर्सनैलिटी। कि लोग इनको पसंद करते हैं। एंड देन एग्रीएबल पीपल फोकस ऑन गेटिंग अलोंग, नॉट नेसेसरली गेटिंग अहेड। ये लोगों को साथ लेके चलना पसंद करते हैं, ना कि लोगों से आगे निकलना पसंद करते हैं। ये एग्रीएबलनेस के लोग हैं। और एक्सट्रोवर्जन है, आपको पता है, जो टॉकटिव होते हैं, सोशल होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, जल्दी दोस्तियां कर लेते हैं, जल्दी लोगों के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, ये इनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक जीरो एक्विटेंस सिचुएशंस होती हैं, जिसके अंदर सिचुएशन इन विच टू पीपल हैव ओनली जस्ट मेट। कंसिडर टाइम व्हेन यू हैव बीन अराउंड अ स्ट्रेंजर इन अ डॉक्टर्स ऑफिस। कि लोग मिलते हैं और मिलने के साथ ही कोई ना कोई रिलेशन बन जाता है उनका। ये जीरो एक्विटेंस है कि लेस टाइम के अंदर रिलेशन बना लिया। वो कौन बनाता है, एक्सट्रोवर्ट बनाता है, नॉट इंट्रोवर्ट्स। देन स्टेटस ड्राइविंग है। तो ये जो लोग होते हैं, दे हैव strong desire to obtain power and influence within a social structure as a mean of expressing personality। तो ये पावर और इन्फ्लुएंस के अंदर है कि अपनी अपनी पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज एक्सट्रोवर्ट है ना, तो हमेशा जो है अपने आप को ज्यादा बयान करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं लोगों को सुने भी सही, ये अपने आप को बयान ज्यादा करेंगे। जब अपने आप को ज्यादा बयान करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, अपने आप को ज्यादा सोशलाइज करेंगे, तो क्या मतलब है, ये डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो दैट इज वाई हम कहेंगे कि ये स्टेटस ड्राइविंग होती है। एंड देन पॉजिटिव अफेक्टिविटी है। पॉजिटिव अफेक्टिविटी ये है कि इनके जो इमोशंस होते हैं वो अक्सर पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि जब आपने लोगों से बोलना है, बात करनी है, एक्सप्रेस करना है, तो यू शुड हैव पॉजिटिव इमोशन। A dispositional tendency to experience pleasant, engaging moods such as enthusiasm, excitement, and elation। ये जो लोग होते हैं बेसिकली ये अपने प्लेजेंट मूड्स और प्लेजेंट एंगेजिंग मूड्स के साथ ही लोगों से रिलेशन बना सकते हैं। दैट इज वाई हम कहते हैं ये पॉजिटिव अफेक्टिविटी होती है, नहीं पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। न्यूरोटिसिज्म इसके मुकाबले में क्या है, न्यूरोटिक पीपल आर नर्वस, मूडी, इमोशनल, इनसिक्योर एंड जेलस। ठीक है, लाइक उनके जो इमोशंस हैं वो स्टेबल
नहीं होते। न्यूरोटिसिस इज अ सिंबल विद नेगेटिव अफेक्टिविटी। जब आपके इमोशन स्टेबल नहीं है तो जाहिर बात है आपके इमोशन जब स्टेबल नहीं है, उतार चढ़ाव में आएगा, तो कभी गुस्सा आएगा, कभी परेशान होंगे, कभी खुश होंगे, तो आपका हर तरह का मूड और इमोशंस ज्यादा होंगे, तो वो पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे। तो जब स्विंग्स आ रही हैं मूड्स में, तो उनको जाहिर बात है आप अच्छा डिफाइन नहीं करेंगे। यू विल से देम समथिंग दैट इज नेगेटिव अफेक्टिविटी रादर देन पॉजिटिव अफेक्टिविटी। अच्छा, ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो डिफरेंशियल एक्सपोजर्स एंड डिफरेंशियल रिएक्शंस होते हैं। हम नहीं इनके बारे में श्योर हो सकते हैं कि ये चीज को कैसे देखेंगे, यानी एक्सपोजर कैसा होगा चीज के बारे में इनका, और वो उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे। लाइक एक ही चीज को हो सकता है एक टाइम पे ये अच्छा देखें, अगले टाइम पे ये बुरा समझें, एक टाइम पे उस पर खुश हों, अगले टाइम पे उसको जो है नेगेटिवली देखें। ठीक है, तो ये न्यूरोटिसिज्म है। देन टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटीज हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टाइप बी जो है वो काम होते हैं, कूल होते हैं, वेट करते हैं चीज़ों का, कंसिस्टेंट एफर्ट्स करते हैं। टाइप ए जो है वो एक वक्त में एफर्ट्स करते हैं, बट दे लुक फॉर द इमीडिएट रिटर्न्स, और जल्दी घबरा जाते हैं, जल्दी लूज हार्ट कर देते हैं अगर उनको इमीडिएट रिजल्ट्स ना मिले तो। जल्दबाज तबीयत, आप सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं। तो आप खुद सोचें कौन इनमें से जल्दबाज होगा, इमोशनल जिसके स्टेबल होंगे या जिसके स्टेबल नहीं होंगे। तो आई होप सो आपको आंसर यही आपका माइंड देगा कि जिसके इमोशन स्टेबल है वो टाइप बी होगा, और जिसके इमोशन स्टेबल नहीं है यानी जिसका न्यूरोटिसिज्म हाई है वो टाइप ए पर्सनैलिटी। देन लोकस ऑफ कंट्रोल होता है कि ये भी एक पर्सनैलिटी की ट्रेट ही है बेसिकली, कि हमारे कंट्रोल का लोकस या मरकज कहाँ है। दो तरह की मरकज हो सकते हैं, हमारे हाथ में जो कुछ हो रहा है वो हमारे हाथ में है, या बाहर के एनवायरनमेंट के हाथ में है। वो लोग जो ये बिलीव करते हैं कि जो कुछ भी होता है वो हमारी वजह से होता है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। और वो लोग जो बिलीव करते हैं कि नहीं हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, ये एनवायरनमेंट से होती हैं सारी चीजें, उन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। तो जिनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है ना, उनकी अक्सर टाइप बी पर्सनैलिटी होती है, न्यूरोटिसिज्म उनकी लो होती है, यानी इमोशनली वो स्टेबल होते हैं। और वो लोग जो जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, अक्सर औकात उनका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो लो होती है, और उनका न्यूरोटिसिज्म हाई होता है, क्योंकि वो बाहर के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो बाहर का एनवायरनमेंट जैसे बदलेगा उनके इमोशंस भी बदलेंगे, लेकिन अंदर का कंट्रोल रखने वाले अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं, बिकॉज दे नो दैट दे कैन कंट्रोल देयर इमोशंस। दैट इज वाई उनका इमोशनल स्टेबिलिटी हाई होती है। लास्ट थिंग जो कनू में है, दैट इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस है। उसमें क्या है कि वो लोग जो क्यूरियस होते हैं, इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, नया करते हैं, वो हमारे बेसिकली ओपननेस टू एक्सपीरियंस के लोग कहलाते हैं। Now, what you have to do, how various personality dimensions are linked with the mediators and outcome variables of integrated model। ये पढ़ना है आपने, बुक से हेल्प लें, दूसरी बुक से हेल्प लें, इंटरनेट से हेल्प लें, कोई आर्टिकल्स पढ़ें, एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस असाइनमेंट। इस प्रेजेंटेशन के अंदर देयर आर 3 असाइनमेंट्स, उनको कंबाइन करके आप लोगों ने मंडे को सबमिट करवाना है थ्रू सीआर। ठीक है, तो दिस इज योर टास्क फॉर द क्लास। अच्छा, सेकंड जो पर्सनैलिटी की हमारी डायमेंशन है जिससे हम पर्सनैलिटी जज करते हैं या मेजर करते हैं, दैट इज एमबीटीआई। ये वाइडली यूज्ड है, एमबीटीआई सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, प्रोफेशनल इसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेसिकली ये माँ और बेटी हैं, मेयर्स और ब्रिग्स, उन्होंने बनाया था। और उनके मुताबिक जो है हमारे पास बेसिकली 4 तरह की पर्सनैलिटी के फैमिलीज हैं, यू कैन से। उनको उनमें से हम 16 कोड्स बना सकते हैं। बनाते कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके मुताबिक पहली जो है ना हमारे पास, हम या एक्सट्रोवर्ट होते हैं, या हम लोग जो है वो इंट्रोवर्ट होते हैं, यानी एक्सट्रोवर्टियन है वर्सेस इंट्रोवर्टियन है। आप जानते हैं एक्सट्रोवर्ट कौन होते हैं और इंट्रोवर्ट कौन होते हैं। सेकंड इन्होंने कहा है कि इंसान जो है या वो सेंसिंग होता है या वो इंट्यूटिंग होता है। ठीक है, अब वो क्या है, वो जरा आप देख लें। सेंसिंग वो लोग होंगे प्रेफर क्लियर एंड कंक्रीट फैक्ट्स एंड डेटा, जो फैक्ट्स और डेटा के बगैर कभी भी फैसला ना करें। इंट्यूशन क्या होती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम हंचेस, गट फीलिंग्स उनको इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदाजे की बेस पे हम फैसला करते हैं, वो इंट्यूशन कहलाती है। तो एक इंसान या तो सेंसिंग करने वाला होगा या इंट्यूशन करने वाला होगा। देन थिंकिंग है। थिंकिंग अप्रोचिंग डिसीजन विद लॉजिक एंड क्रिटिकल एनालिसिस है, यानी आप बकायदा लॉजिक और क्रिटिकल एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसकी बेस पर डिसीजन करेंगे, वो थिंकिंग है। और फीलिंग है अप्रोचिंग डिसीजन विद एन एम्फेसिस ऑन अदर्स नीड्स एंड फीलिंग्स। हम यूं कह सकते हैं दिमाग से काम लेने वाले थिंकिंग है और दिल से काम लेने वाली फीलिंग्स है। एंड देन जजिंग एंड परसीविंग है बच्चों। जजिंग जिस तरह अप्रोच टास्क बाय प्लानिंग एंड सेटिंग गोल्स वर्सेस परसीविंग। परसीविंग में ये होता है ना कि हमें जो बेहतर लगता है हम वो करते हैं। प्रेफर टू हैव फ्लेक्सिबल एंड स्पॉन्टेनियटी व्हेन परफॉर्मिंग टास्क, यानी वो स्पॉन्टेनियस सिचुएशन के मुताबिक काम करने को पसंद करते हैं।
ठीक है, तो वो परसीविंग कहलाएगा हमारा। अब इससे हमारे कोड्स बनते हैं। जिस तरह आप देखें ना, इनमें पहले पहला वर्ड लिया जाता है, एक्सट्रोवर्ट का ई लिया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह जो है वो इंट्रोवर्जन का आई लिया जाएगा, सेंसिंग लिया जाएगा इसका एस। अब क्योंकि आई हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं, इंट्यूशन में भी आई है, इंट्रोवर्जन में भी आई था, तो इसके लिए हम बारो कर लेंगे सेकंड वर्ड, दैट इज एन, इंट्यूशन का। देन थिंकिंग एंड फीलिंग, और जजिंग एंड परसीविंग। ओके, ये हमारे सामने है, मौजूद है। अब इनमें से कोड बनते हैं, हमने जाहिर बात है ये चार कॉम्बिनेशन है, इनमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी थ्योरी लगाएं तो 4 × 4 16 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। जिस तरह आपका कोड कोई भी, आप पहला पहला वर्ड ले लें, एक्सट्रोवर्जन ले लें, सेंसिंग ले लें, थिंकिंग ले लें, जजिंग ले लें, तो ISTJ, ISFP। तो ये इस तरह के 16 कोड्स बनेंगे। अब आपने क्या करना है, ये भी आपका टेस्ट है, पर्सनैलिटी टेस्ट। मैंने एक वेबसाइट बता दी है, यू मे विजिट सम अदर वेबसाइट। तो वहां से हमने दो तरह के अपने रिजल्ट लेने हैं। नंबर वन, एक तो पर्सनैलिटी कोड लेना है अपना, और उसका डिस्क्रिप्शन आपने लेना है कि उसका क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपने करियर चॉइस जो है वो क्या है, आपको कौन सा सूटेबल करियर जो है वो सूट करता है, वो आपने लेना है, ठीक है। तो ये आपका पर्सनैलिटी का टेस्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, वो हॉलैंड ने दिया था। हॉलैंड बेसिकली जो है करियर मैनेजमेंट में उसका काम ज्यादा है, तो उसने करियर मैनेजमेंट से रिलेटेड एक मॉडल दिया था कि इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो जॉब से मैच करती है ऑन दीज ग्राउंड्स। तो इसने राइजिक मॉडल दिया था, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। रियलिस्टिक क्या है, एंजॉय प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड टास्क, टेंड टू बी फ्रैंक प्रैक्टिकल डिटरमिन एंड रॉक्ड। यानी ये रियलिस्टिक लोग होते हैं, बिल्कुल हकीकत पसंद होते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों को पसंद करते हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ों को ही देख के उसकी उसी के बेस पर डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टिगेटिव होते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, एनालिटिकल हैं, थ्योरी ओरिएंटेड हैं, प्रैक्टिस इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन ये नए काम करने को पसंद करते हैं। तो क्रिएटिव ज्यादा होंगे, इनोवेटिव ज्यादा होंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करेंगे। आर्टिस्टिक वो है जो चीज को नए तरीके से, इमेजिनेशन पे ज्यादा चलते हैं, प्रैक्टिस के तो करीब जाएंगे, लेकिन आर्टिस्टिक चीजों पे ज्यादा वैल्यू करेंगे, ज्यादा सोचने का काम, ज्यादा बिलीव करने का काम, ज्यादा जो है वो तखयल, परसेप्शन, उस पे काम ये करेंगे। देन सोशल है, ये दूसरों के साथ रहना पसंद करते हैं, लाइक एक्सट्रोवर्ट लोग जैसे होते हैं, तो ये दूसरों के साथ मिल के जो है हेल्प करेंगे, उन्हें सर्व करेंगे, उन्हें असिस्ट करेंगे, तो इन्हें उसमें सुकून और खुशी फील होती है। एंटरप्राइजिंग है, जो वो लोग हैं जो परसुएड करते हैं, लीड करते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं दूसरों के मुकाबले में, एनर्जी होती है उनमें, एम्बिशन होते हैं, रिस्क लेते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है, एंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल जो रिस्क जो है वो लेता है बेसिकली। देन कन्वेंशनल है, वो लोग हैं जो कन्वेंशनल अप्रोच पे बिलीव करते हैं, ठीक है। वो ये जो लोग होंगे क्या करेंगे इसमें, लाइक काउंटिंग है, रेगुलेटिंग पीपल है, ठीक है, ये रूटीन के जो काम है उनको पसंद करते हैं, वो कन्वेंशनल है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कन्वेंशनल का, आप अगर आप यहाँ से क्लॉकवाइज चलें, वैसे ये एंटी क्लॉकवाइज इसका कोड बनता है राइजिक का। आपको सबसे पहले नजर आ रहा है आर, रेड में, रियलिस्टिक है, देन इन्वेस्टिगेटिव है, मैं इसको इंसर्कल कर देता हूँ आपको ताकि नजर आ जाए। रियलिस्टिक है, इन्वेस्टिगेटिव है, उसके बाद आर्टिस्टिक है, उसके बाद सोशल है, एंटरप्राइजिंग है, और कन्वेंशनल है, ठीक है। तो दीज आर द 6 डायमेंशन। अब अपोजिट है इसके, रियलिस्टिक को देखें तो रियलिस्टिक का अपोजिट सोशल है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेटिव का अपोजिट देखें एंटरप्राइजिंग है, और आर्टिस्टिक का अपोजिट जो है वो कन्वेंशनल है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो जो लोग बेसिकली हैं, कन्वेंशनल लोग हैं, दे दे वर्क विद डेटा, ठीक है, काम को पसंद करते हैं डेटा के साथ। जो आर्टिस्टिक हैं, दे वर्क विद आइडियाज। फिर जो इन्वेस्टिगेटिव या रियलिस्टिक हैं, दे वर्क विद थिंग्स। और जो एंटरप्राइजिंग और सोशल हैं, दे वर्क विद पीपल, ठीक है। तो दिस इज हाउ दे वर्क। तो अब इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके मुताबिक जो ये 6 पर्सनैलिटीज बनती हैं आपकी, कि आप जो है वो कौन किस में ज्यादा है, किसी एक में ज्यादा होंगे तो दूसरे में आप ऑटोमेटिकली जो है वो कम होंगे। ओके, आफ्टर दैट,
ओके, आफ्टर दैट कल्चरल वैल्यूज। अब जो पर्सनैलिटी, हमारा जो टाइटल था ना, अगर आप देखें, दैट वाज पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज। हमने पर्सनैलिटी की बात की, पर्सनैलिटी इज डिटरमिन्ड बाय योर जीन्स, और सेकंड आपका इन्वायरमेंट है। अब जो इन्वायरमेंट है उसमें कल्चर भी तो एक इन्वायरमेंट है ना हमारा, कल्चर का भी तो एक रोल होता है। अब कल्चर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, मोटिव्स, आइडेंटिटीज एंड interpretation that result from common experience of members of society and are transmitted across generations। तो ये बेसिकली वैल्यूज हैं, कोई बिलीव्स हैं, कोई मकासद हैं, कोई आइडेंटिटीज हैं हमारी, इंटरप्रिटेशंस हैं हमारी, जो बेसिकली जनरेशन टू जनरेशन चलती है और एक नस्ल से दूसरी नस्ल में कल्चर की वजह से आती है। ओके, तो कल्चर के ऊपर जो सबसे पहला काम बच्चों जो है ना, वो गिराट हाफस्टीड है। ये एक नेदरलैंड के एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली वो फील्ड है जिसमें हम कल्चर्स को स्टडी करते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। 1960s और 70s में इन्होंने रिसर्च की थी। 88,000 एम्प्लॉइज से इन्होंने डेटा लिया था 20 लैंग्वेजेस में, और 72 कंट्रीज के एम्प्लॉइज से, आईबीएम के वो। और उनसे इन्होंने डेटा लेके डिवाइड किया था कि बेसिकली जो है वो कल्चर्स किस तरह के होते हैं। इनके मुताबिक जो लोग काम कर रहे थे ना, वो जो 72 कंट्रीज के लोग थे, उनके वैल्यूज में फर्क था। ठीक है, अब वो वैल्यूज जो है वो उनमें जो फर्क था वो उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया कि 5 किस्म के डिफरेंसेस थे। इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म थी, पावर डिस्टेंस थी, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस थी, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी थी, और शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन थी। तो इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविज्म नाम से जाहिर हो रहा है कि आप इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं चीजों को या कलेक्टिव प्रेफर करते हैं चीजों को। जिस तरह जब फैसले किए जाते हैं तो सबको जहन में रख के किए जाते हैं, या एक बंदा अपने आपको जहन में रख के करता है। तो यहाँ से पता लग जाता है कि इंडिविजुअलिज्म है या कलेक्टिविज्म है। जिस तरह आप देखें, यूरोप में इंडिविजुअलिज्म है, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, यहाँ कलेक्टिविज्म है। तो हम कलेक्टिविस्ट सोसाइटीज कहलाते हैं मशरक वाले, और मगरब वाले जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज कहलाते हैं। देन पावर डिस्टेंस है कि आपकी सोसाइटी में पावर कितनी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर पावर जो है सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम कहेंगे पावर डिस्टेंस लो है। अगर कुछ लोग बहुत पावरफुल हैं और कुछ लोगों के पास पावर बिल्कुल नहीं है तो हम कहेंगे उनमें पावर डिस्टेंस जो है वो हाई है। और अगर इक्वली हैं, सारे आम शहरी, वजीर आजम, सदर बराबर हैं, तो हम कहेंगे पावर डिस्टेंस जो है वो लो है। जिस तरह जापान में, यूरोप में आप देखते होंगे, वहाँ पे अक्सर प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे आ रहा होता है। ठीक है, एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर साइकिल पे आ रहा होता है, सारे कोई फील नहीं करता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम हमारी रिस्पेक्ट है, अना है, हमारी इज्जत है। तो इसका मतलब हम पावर को ही बेसिकली पसंद करते हैं ना। गाड़ी में आएंगे तो हम अथॉरिटी शो कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। ये जो सीएसएस हम करते हैं वो पावर डिस्टेंस की एक निशानी है ना। झंडे वाली गाड़ी होनी चाहिए, वो झंडे वाली गाड़ी होगी, पीछे पुलिस वाले आ रहे होंगे, तो ये पावर डिस्टेंस ही, हम पावर को शो करना पसंद करते हैं। तो वो कल्चर जहाँ प्रेफर दैट पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली वेयर पॉसिबल इज मोर इजिलिटेरियन फैशन। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है, जर्मनी है, नेदरलैंड, उनमें पावर डिस्टेंस लो है। और हाई पावर डिस्टेंस है जिस तरह कल्चर एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट पावर इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली विद इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई ज्यादा पावरफुल है, कोई कम पावरफुल है, तो ये पावर डिस्टेंस ज्यादा की निशानी है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है कि आप अनसर्टेनिटी को कितना अवॉइड करते हैं। वो लो हो सकती है या हाई। जिस तरह आप देखें, वो कल्चर जहाँ पे एम्बिग्विटी और अनसर्टेनिटी से बचने की कोशिश की जाती है, वो बेसिकली कहलाएंगे लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंट कल्चर्स। वो कल्चर्स जहाँ पे बेसिकली अनसर्टेनिटी और इससे अवॉइड नहीं किया जाता, उसके साथ ही चलाते हैं चीज़ों को, वो कहलाएंगे हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंट जो है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो है एम्बिगुअस सिचुएशन, ठीक है, और फार्मर रूल्स को जो है वो पसंद किया जाता है रादर देन अनसर्टेनिटी। जैसे जापान, रशिया, फ्रांस, ये जो है हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेड है। इसके मुकाबले में जो यूरोप है, अमेरिका है, ठीक है, ये जो है ये लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेड है। मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिनिटी है। देखो, मैस्कुलिनिटी होती है जब मेल डोमिनेट करे, तो फेमिनिनिटी में ये नहीं होता कि फीमेल डोमिनेट करे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेल करने नहीं देंगे और फीमेल कर भी नहीं सकती। वो जहनी तौर पे अपने आप को समझती ही नहीं है, मेजोरिटी वुमेन, कि दे कैन बी डोमिनेटेड बाई, दे कैन डोमिनेट। तो फेमिनिज्म बेसिकली ये है कि जब मेल और फीमेल इक्वल हो, ठीक है, ये जब परसेप्शन होती है, इसे हम फेमिनिज्म कहते हैं। जिस तरह आप देखिए, हमारे यहाँ वी आर बेसिकली मैस्कुलिन सोसाइटीज, जहाँ मेल का रोल होता है ज्यादा। और वो सोसाइटीज जहाँ मेल और फीमेल बराबर हैं, तो वो फेमिनिन सोसाइटीज कहलाएंगी। अच्छा, देन है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, कि आपका कल्चर जो है वो लंबे अरसे का सोचता है या थोड़े अरसे का सोचता है। जिस तरह आप देखें,
नीचे मेंशन है चाइना, जापान, ये जो है ये प्रेफर करते हैं लंबे अरसे का सोचना। अमेरिका, रशिया, वेस्ट अफ्रीका, ये जो है ये वो कंट्रीज हैं जो शॉर्ट टर्म का सोचते हैं, यानी प्लानिंग जब करेंगे तो वो थोड़े अरसे की प्लानिंग करेंगे। अब ये जो है अगेन ओवरऑल यहाँ पे 5 जो हमारी डायमेंशन है, कल्चरल डायमेंशन, उनकी बेस पे हमने डिसाइड कर लिया कि ये क्या होती हैं। अब आपने क्या करना है, एक और टास्क जो आपका है वो विजिट करनी है गिराट हाफस्ट्रीट की वेबसाइट। वहां से पाकिस्तान और इंडिया का स्कोर देखना है और उनका कंपैरिजन आपने करना है कि हमारे अंदर क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। फिर एक ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस फ्रेमवर्क बनाया गया। ये भी गिराट हाफस्ट्रीट के बाद था, 20th सेंचुरी के एंड पे। इन्होंने कुछ और चीजें ऐड की अदर देन दोज 5 डायमेंशन, लाइक वो आपको नजर नजर आ रही हैं। जेंडर इजिलिटेरियनिज्म, असर्टिवनेस, फ्यूचर ओरिएंटेशन, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन और ह्यूमन ओरिएंटेशन। जेंडर एजिलिटेरियनिज्म क्या है? द कल्चर प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड मिनिमाइजेस रोल डिफरेंसेस। ये मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का अल्टरनेट है। देन असर्टिवनेस है, द कल्चर वैल्यूज असर्टिवनेस, कन्फ्रंटेशन एंड एग्रेसिवनेस इन सोशल रिलेशनशिप्स। ये आपके जो सोशल रिलेशन है वो अग्रेसिवनेस के हैं, ये कूल एंड काम रिलेशन है। फ्यूचर ओरिएंटेशन है वो इस तरह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन के उसके मुकाबले में। परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है कि क्या, हाँ, क्या परफॉर्मेंस को वैल्यू किया जाता है, क्या रिवार्ड्स को परफॉर्मेंस से लिंक किया गया है या रिवार्ड वैसे ही मिल जाते हैं। एंड देन ह्यूमन ओरिएंटेशन, क्या जो है वो रिवार्ड देते हुए परफॉर्मेंस के साथ क्या ह्यूमन को भी वैल्यू किया जाता है या नहीं किया जाता है। फेयरनेस, काइंडनेस, सिंपथी, केयर, ये चीज़ें क्या हैं इंसानों के बारे में, तो ये ह्यूमन ओरिएंटेशन है। तो कलेक्टिवली बच्चों वी आर डन विद दिस पार्ट। अगर आप देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी और वैल्यूज़ हैं वो उसको डिफाइन करते हैं कि वो कैसा है। और पर्सनैलिटी को डिटरमिन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है, बिग 5 का है, एमबीटीआई का है, राइजिक का है। देन कल्चरल वैल्यूज हैं जो कल्चरल टेक्सोनॉमीज हैं, उनमें हॉफस्टीड डायमेंशन हैं और ग्लोब डायमेंशन हैं। तो वी आर डन विद दिस। सो चैप्टर नंबर 9 इज ओवर। तो अब आपने इस चैप्टर में 3 असाइनमेंट्स बनानी है, आपको नजर आ रही है। एक तो गिराट हॉफस्टीड के वेबसाइट से, एक आपने अपना पर्सनैलिटी का टेस्ट करना है, और तीसरा आपने जो है वो पर्सनैलिटी को लिंक करना है मीडिएटिंग और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो हमारे इस मॉडल में है। तो दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड यू हैव टू सबमिट इट ऑन मंडे। ठीक है, तो दिस इज योर क्लास इंडिविजुअल असाइनमेंट, क्योंकि पर्सनैलिटी भी इंडिविजुअल टेस्ट होगी और बाकी सारी चीज़ें भी इंडिविजुअल होंगी। तो बेस्ट विशेज, मे अल्लाह कीप यू सेफ एंड हेल्दी, और आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं सबको खैरियत से रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।